यस, थैंक यू मैम। हाँ जी, डन मैम, हाँ डन। जी, हो गया जी। सो human development I was telling, in 10th class I think in it was economics chapter या geography chapter था first हमारा, एक उसमें बीच में आया था human development index. Human development index means average performance of different countries with regard to different features of human development. ह्यूमन डेवलपमेंट किस तरह से होती है? इफ यू रिमेंबर, आपने उसमें किया था कि इनकम इज नॉट द ओनली thing which is desired by people. Along with good income, along with good salary or income, people also want security of life, people also want good health, good medicational facilities, people also want equality, respect in society, dignity of labor, people also want all these things. मतलब मनी वाइज, इनकम वाइज तो ठीक है, किसी के पास बहुत इनकम है, बट ही इज नॉट गेटिंग रिस्पेक्ट इन द सोसाइटी. थ्रू इलीगल मीन्स ही इज अर्निंग मनी, दैट nobody is going to respect him. One person has very good income, very handsome income is there, salary is there with him, but the locality where he is living, that locality is not a good locality in every sense. ठीक है, infrastructure problems are there, or people around that person, that home, they are not so good in terms of social norms, तो भी that person is not going to get respect in the society. पैसे होना ही सब कुछ नहीं है, along with money various other things are required. तो जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, इट हेल्प्स अस टू मेजर ऑल दोज थिंग्स. और बेसिकली इसमें आ जाता है एजुकेशनल लेवल, पर कैपिटा इनकम एंड हेल्थ स्टेटस. आई होप यू रिमेंबर health status, then second was this educational status, and then third per capita income. Three things are being added to be divided by 3. जो भी वैल्यू आती है वो हमारा हो जाता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स ऑन एन एवरेज. ठीक, तो नाउ वी हैव टू कंपेयर द परफॉर्मेंस ऑफ ऑल दीज 3 कंट्रीज विद रिगार्ड टू दीज इंडिकेटर्स, राइट. तो अब नाउ आई हैव शोन वन टेबल, दिस इज गिवन इन योर बुक्स ऑल्सो. वी विल कंपेयर इन टर्म्स ऑफ दीज. नाउ यू विल सी कि कोई चीज़ ज़्यादा होना बेटर है कंट्री के लिए, कोई चीज़ का कम होना बेटर है. तो वो कैसे है, लेट अस स्टार्ट वन बाय वन. जैसे फर्स्ट इज ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स वैल्यू. इंडेक्स वैल्यू, इसका जो क्वोशंट आता है, कोएफिशिएंट आता है, दैट इज लेस देन 1. ठीक है, पॉइंट में 0.1, 0.2, 0.3, 0.9 तक इसकी वैल्यू होती है, 1 से लेस होती है, 0 to 1, रेंज इज 0 to 1. तो नाउ वी कैन सी, if we compare this HDI value, HDI means Human Development Index, which country is performing better? China. Which country is moving towards 1? Highest coefficient किसका आ रहा है? China. तो चाइना का आ रहा है ना, 0.7 ज़्यादा आ रहा है. Then being followed by India, 0.6 में आ रहा है. Then last is पाकिस्तान. इसका मतलब जो चाइना है, that is at number first place with regard to development of human beings. That means indirectly we can say कि China is making lot of efforts towards the improvement in their per capita income level, towards the health status of their people, as well as educational status. अगर वो कर रहे हैं, only then performance is coming better. If that country is not working in these directions, तो ये HDI index काम नहीं कर सकता है, बढ़िया नहीं हो सकता है. That means efforts are being made by China in this regard. ठीक है. Second is HDI rank. HDI rank में क्या होता है? This is just like your ranks in class result. जैसे आप देखते हो, highest marks first position, second highest second position, as marks are coming down, वैल्यू कम होती जाती है, आपका जो ग्रेड है वो पोजीशन है, रैंक है, वो कम होता जाता है. कम मार्क्स मतलब लास्ट रैंक. ठीक, तो इसी तरह से जो कंट्रीज फर्स्ट पोजीशंस के ऊपर होते हैं, वो कंट्रीज, दैट मीन्स देयर रैंक इन द वर्ल्ड. मतलब नाउ कंट्रीज आर टू बी कंपेयर्ड. अब इतने सारे कंट्रीज हैं इन द वर्ल्ड, तो नाउ इफ वी कंपेयर, अब हमने सबको नहीं कंपेयर करना है, हमने वी आर रिस्ट्रिक्टिंग अवरसेल्व्स इन दीज कंट्रीज ओनली. तो विच कंट्री इज परफॉर्मिंग द बेस्ट? चाइना. मतलब 1 से शुरू करें तो चाइना पूरे वर्ल्ड में 91st प्लेस के ऊपर है. इसका मतलब इसके पहले भी 90 कंट्रीज हैं, दे आर मच बेटर देन चाइना, वो इससे भी बेटर है. अब वो कौन सी कंट्रीज हैं? ज़्यादातर जो कंट्रीज हैं, यूरोपियन कंट्रीज एंड नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज, मैक्सिमम ऑफ देम. बाकी तो और भी हो सकते हैं, बट मैक्सिमम कंट्रीज विच आर परफॉर्मिंग बेटर एज कम्पेयर टू चाइना, दे आर फ्रॉम वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज एज वेल एज नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज. ठीक, अच्छा, उसके बाद सेकंड प्लेस इज ऑफ इंडिया. अब इसके 91 और 31, 131 में लॉट ऑफ डिफरेंस इज देयर. इसका मतलब इंडिया नीड्स टू डू ए लॉट टू कम टू दिस पोजीशन एट लीस्ट. फर्स्ट सेकंड पहली 10 तो छोड़ दो, 20 भी छोड़ दो, 50 भी छोड़ दो, इवन 90 तक आने के लिए भी इंडिया हैज टू डू ए लॉट. ठीक, एंड पाकिस्तान वर्स्ट पोजीशन अमंग ऑल दीज 3 कंट्रीज, 148 लास्ट रैंक. ठीक,
Last in these three countries. Next is life expectancy in years. अब यहाँ पर ये जो भी terms आई है, their meanings are also given in the book. You have to learn their definitions also. Important for 1 mark type question. Now, what is life expectancy? Anyone? All this you have read it up to 10th 11th class. पढ़ा हुआ है आपने. Only one hand is up. हाँ जी प्रथम. ठीक है, very right, perfectly right, दिव्यांशी. बस you are not talking to me, you are talking to me. Average year of life one is expected to live. Yes, Harshita, same. Nee, tell in your own words. Average years of life. But tomorrow you will be sent back home with sanitized hands and bag. Go back. Huh? Yes. So life expectancy means it is calculated in years, and it means the average life which is expected at the time of birth of an issue. Issue मतलब कोई बच्चा जो होता है at the time of his or her birth, what age is expected for him on an average. Now we don't have all the people, they don't have same age. सभी 100 years के नहीं होते, सभी 70 years के नहीं होते, किसी की डेथ पहले किसी की बाद में. तो यहाँ पर जस्ट एक एवरेज क्राइटेरिया है भी ऑन एन एवरेज, जैसे हम आम बोलचाल में बोलते हैं भाई आम 75 years तक कोई आदमी जीता है, कोई इंसान जीता है, या 70 years तक जीता है. उसके पहले डेथ हो जाती है, वी फील वेरी बैड, भी अभी इतनी उम्र नहीं हुई कि डेथ हो जाए. दैट मीन्स वी एक्सपेक्ट भी एक नॉर्मल सिचुएशन में, एक पॉजिटिव से एनवायरनमेंट में एनी ह्यूमन बीइंग लिव्स, ठीक ठाक फैमिली में रहता है, अच्छा उसका हेल्थ है, ठीक है, एवरीथिंग इज फाइन, तो वो इतनी एज वो जी सकता है ऑन एन एवरेज. तो ये लाइफ एक्सपेक्टेंसी. व्हाट इज द स्टेटस ऑफ दीज थ्री कंट्रीज? हाईएस्ट इन चाइना, सबसे ज्यादा चाइना में है, एंड बीइंग फॉलोड बाय इंडिया, and last one is Pakistan. India और Pakistan में less difference is there. That means Pakistan is also trying to do better, but still it is at number 3. ठीक? You will be surprised to know जापान में average age जो life expectancy है 100 years के आसपास है. 105. जैसे अपने यहाँ कोई 105 years जी ले तो बड़ी मारामारी जी, पता नहीं क्या हो गया, इतना भगवान की ने उनको इतने उनके परिवार फैला दिया जी, ये कर दिया वो कर दिया, ऐसे हम बोलते हैं बड़ा खुश होके. तो वहाँ और कोई कोई होता है ना. तो जापान में आम ही है लोगों की एज 100 years के ऊपर होना, एक आम सा फिनोमिना है, कोई नई बात नहीं है इसमें. और बहुत सारे लोग हैं जो 105 तक भी जीते हैं और उससे भी ज़्यादा कई जी लेते हैं, मैक्सिमम जी लेते हैं. इसका मतलब क्या हुआ कि लाइफ की जो एक्सपेक्टेंसी है दैट डिपेंड्स ऑन वेरियस फैक्टर्स. अच्छा एनवायरनमेंट, फैमिली एनवायरनमेंट, प्लस अच्छा खाना पीना, प्लस अच्छा हेल्थ के रिलेटेड जो भी मेडिकेशनल फैसिलिटीज़ हैं, ठीक ठाक कंट्री में उस आदमी की इनकम भी हो रही है, बढ़िया से अपना लाइफ, एक कंटेंटेड लाइफ जब हम जीते हैं तो लाइफ के बढ़ने के चांसेस ज़्यादा होते हैं. तो दैट मीन्स सिक्योरिटी ऑफ लाइफ या सेफ्टी ऑफ लाइफ इज मच बेटर इन जापान एज कम्पेयर टू अवर दीज थ्री एशियन कंट्रीज. ठीक है, जापान भी एशियन कंट्री है बट इनकी बात करें तो. Next is mean years of schooling. Now you can see it is given mean years of schooling, that is percentage 15 and above. मतलब those children या people those whose age is 15 or more than 15 in comparison with the total population. ठीक है, जैसे टोटल पॉपुलेशन है 100, उसमें से मान लो 27 लोग हैं जिनकी एज 15 ईयर या उससे ऊपर है, बाकी सब उससे छोटे हैं. तो उस तरह से हमने परसेंटेज निकालनी है कि कितने 15 एंड अबव हैं डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन इन दैट एज कैटेगरी. तो कितना मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग है, अभी कितने साल वो स्कूल जाते हैं, उनके एवरेज स्कूलिंग कितनी है, सिंपल वर्ड्स में एवरेज स्कूलिंग के ईयर्स कितने हैं, दैट इज परसेंटेज है. दैट इज हाईएस्ट इन चाइना 7.6. मतलब सबसे ज़्यादा जो एजुकेशनल फैसिलिटीज हैं इस एज ग्रुप में 7.6 इन चाइना, फॉलोड बाय इंडिया, एंड देन लास्ट वन इज पाकिस्तान. अब तक यहाँ ये 3-4 हमने किए हैं. वी आर सेइंग कि जो पाकिस्तान है दैट इज एट द लास्ट प्लेस. दैट कंट्री नीड्स मोर डेवलपमेंट एज कंपेयर टू इंडिया एंड चाइना. ठीक है जी. देन नेक्स्ट इज जीडीपी पर कैपिटा, साथ में लिखा है ब्रैकेट में $PPP $. येस्टरडे आई टोल्ड यू परचेजिंग पावर पैरिटी. Purchasing power parity means in order to buy a given basket of commodities, basket का मतलब set of commodities या group of commodities, how many rupees are to be spent in India, how much currency is to be spent in China, Pakistan या other countries. तो when that currency is converted in American dollars, एक common parity equality लेके आते हैं कि अगर वही चीजें हमने
अमेरिकन डॉलर्स में इंडिया में खरीदनी हो, पाकिस्तान में खरीदनी हो या चाइना में खरीदनी हो तो कितना खर्चा हमें करना पड़ेगा। तो यहाँ पर है जीडीपी पर कैपिटा। जीडीपी पर कैपिटा मतलब सिंपल वर्ड्स में पर कैपिटा इनकम। कोई भी पर कैपिटा निकालना हो, यू नो द फॉर्मूला। पर कैपिटा का मतलब टोटल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पीपल। जैसे हम कहते हैं टोटल नेशनल इनकम डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री, तो हमें मिल जाती है पर कैपिटा इनकम। तो यहाँ पर है जीडीपी पर कैपिटा का मीनिंग है कि ऑन एन एवरेज जो हमारे कंट्री में टोटल प्रोडक्शन हो रही है वो ऑन एन एवरेज एक आदमी के हिस्से में कितना आता है। अगर हमारे कंट्री में टोटल जीडीपी जितना भी है तो उसमें से एवरेज बेसिस के ऊपर हम सबको कितना हमारा रोल है उसमें या हमें कितना मिलता है। तो चाइना सिंपल वर्ड्स में पर कैपिटा इनकम और सिंपल टर्म्स में हम क्या लें तो हाईएस्ट इनकम इज इन चाइना। एक आदमी की एवरेज इनकम चाइना में ज़्यादा 14,000, उससे बहुत ही कम ऑलमोस्ट 50%, 14 का हाफ कर लो 7,000, उससे भी कम है इंडिया में और सबसे कम है पाकिस्तान में। इसका मतलब इंडिया में स्टिल लॉट ऑफ एफर्ट्स आर रिक्वायर्ड टू इंक्रीज अवर जीडीपी। बहुत बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। ठीक, नेक्स्ट है हमारा कॉन्सेप्ट पीपल बिलो पॉवर्टी लाइन। ये मैंने ऐसे शॉर्टकट में लिख दिया, बीपीएल मतलब बिलो पॉवर्टी लाइन पीपल, दैट इज इन परसेंटेज एंड दिया हुआ है ये $3.10। पहले होता था, काफ़ी पहले के अगर बुक्स देखी तो उसमें लिखा होता है, अगर आपको याद हो, रिलेटिव पॉवर्टी $1 पर डे के हिसाब से, कि जो आदमी इससे भी कम अर्न करता है दैट इज ए पुअर पर्सन। बट नाउ हियर इम्प्रूव्ड डेटा इज गिवन $3.1 से कम है जिनकी इनकम एक दिन की, दैट इज कॉल्ड बिलो पॉवर्टी लाइन। तो उस अकॉर्डिंगली अगर हम देखें तो हाईएस्ट नंबर ऑफ पुअर पीपल दे आर इन पाकिस्तान। परसेंटेज में 100 में से 44 पुअर पीपल हैं पाकिस्तान में, उसके बाद है इंडिया में, उसके बाद है चाइना में। तो अब आप बताओ विच कंट्री इज परफॉर्मिंग द बेस्ट? चाइना। ठीक है, इसका मतलब बिलो पॉवर्टी लाइन पीपल जितने कम होंगे उतना ही दिस इज बेटर फॉर द कंट्री। ठीक, लाइफ एक्सपेक्टेंसी जितनी ज्यादा होगी उतना ही गुड फॉर द कंट्री। ये आपको देखना पड़ेगा कि कौन सी चीज कम हो तो कंट्री के लिए फायदेमंद है, कौन सी चीज ज्यादा हो तो फायदेमंद है। तो बिलो पॉवर्टी लाइन मैक्सिमम पीपल पाकिस्तान में सबसे ज्यादा पॉवर्टी, फॉलोड बाय इंडिया, एंड कंपैरेटिवली लीस्ट पॉवर्टी इज सीन इन चाइना। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कॉन्सेप्ट इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। यहाँ पर यू कैन गेट द डेफिनेशन ऑल्सो। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट मीन्स, इफ यू रिमेंबर, भाई सभी 10th क्लास पास करके आए हैं, ये वहां किया हुआ है। नहीं, आप दोनों हाथ नीचे करो। और कोई? नो? भव्य? Number of infants dying before the age of 1 year. यस, तो आपको पता है तो व्हाई डोंट यू रेज हैंड? बैठिए। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट मीन्स those children who die, their number who die before completing the age of 1 year. 1 साल का हैप्पी बर्थडे करने से पहले ही जयराम जी की हो जाती है। ठीक है, तो वो उन बच्चों का जो परसेंटेज है किसके पीछे है ये? दिस इज 1000। अगर टोटल 1000 बच्चों का बर्थ हुआ है तो उसमें से कितने बच्चे 1 ईयर की एज पूरी होने से पहले डेथ हो जाती है? तो दैट इज कॉल्ड इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। तो वो कौन सी है, कहाँ पर है हाईएस्ट? पाकिस्तान, उसके बाद इंडिया और चाइना में सबसे कम। बट नाउ द मेन थिंग टू बी सीन इज ये डिफरेंस अगर हम इंडिया और चाइना का भी देखें तो गुड डिफरेंस इज देयर। मतलब चाइना इज डूइंग बेस्ट या चाइना हैज मेड एफर्ट्स टू कंट्रोल दिस डेथ रेट। उन्होंने ज्यादा, हमारा अभी भी 38 कोई कम नंबर नहीं है। अगर हम देखें क्वालिटी ऑफ लाइफ के हिसाब से तो इंडिया में परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा बढ़िया नहीं है। चाइना इज मूविंग टूवर्ड्स द बेस्ट पॉसिबिलिटी भी। हाँ, बहुत कम बच्चों की ड्यू टू एनी डिसीज हो तो चलो है ही है, बट ड्यू टू मेल न्यूट्रिशन, ड्यू टू अंडर लेस बैलेंस डाइट या ड्यू टू गुड फूड फैसिलिटी, मतलब कोई भी रीज़न हो सकता है। तो चाइना इज डूइंग बेस्ट, इंडिया का थोड़ा ठीक ठाक ही है, पाकिस्तान वर्स्ट पोजीशन। ठीक, नेक्स्ट है हमारा मैटरनल मोर्टेलिटी रेट पर 1 लाख बर्थ्स। मैटरनल MMR, ठीक है, ये आपको फुल फॉर्म आ सकते हैं। MMR मीन्स मैटरनल मोर्टेलिटी रेट 1 लाख के पीछे, 1 लाख के पीछे। इसका मीनिंग होता है वाइल गिविंग बर्थ टू ए चाइल्ड हाउ मेनी विमेन दे डाई, कितनी विमेन की डेथ हो जाती है एट द टाइम ऑफ चाइल्ड बर्थ। तो वो जो बर्थ रेशियो है दैट इज कैलकुलेटेड पर 1 लाख पीपल, 1 लाख लेडीज की। तो उसमें अब हम देखें हाईएस्ट नंबर ऑफ डेथ्स पाकिस्तान में, ठीक है, उसके बाद कम नंबर ऑफ डेथ्स
174, अब ये 4 का ही डिफरेंस है। इसका मतलब ज़्यादा जो विमेन है एट द टाइम ऑफ चाइल्ड बर्थ जिनकी डेथ हो जाती है 1 लाख के पीछे, वो नंबर इंडिया और पाकिस्तान दोनों में ही काफ़ी ज़्यादा है। थोड़ा सा ही डिफरेंस है बट काफ़ी ज़्यादा है। और अगर हम चाइना को कंपेयर करें 27, तो 27 और 174 का डिफरेंस देखो कितना ज़्यादा है। That means China is able to control this death rate of mothers as well as small children, वो control कर रहे हैं, ठीक। Then next is population using improved sanitation percentage में। Improved sanitation का मतलब हमारे आसपास कितनी क्लीनिंग है या क्लीनलीनेस है, साफ सफाई कितनी है। पर अब अपना देखो इधर अपने कंट्री में रोड पे आते आते कितने गार्बेज के ढेर में पड़े मिलते हैं, इतना रोड्स पे बिखरा होता है, गलियों में बिखरा होता है, गंद पड़ा होता है। दैट मीन्स हमारे आसपास किस तरह की सैनिटेशन है, साफ सफाई का क्या अरेंजमेंट है, वो किस तरह का हमारा माहौल है, वो हम रहते हैं। अगर आपको याद हो तो 2015 में शायद प्राइम मिनिस्टर स्टार्टेड वन प्रोग्राम स्वच्छ भारत मिशन, क्लीन इंडिया मिशन। तो शुरू में इन ऑर्डर टू एनकरेज पीपल कि सब पार्टिसिपेट करें, उन्होंने टीवी पे भी दिखाया, सोशल मीडिया में अपने वीडियो बना के डालो, और प्राइम मिनिस्टर वो हर हफ्ते टीवी पे आके कहते थे अब मैं नाउ आई एम गिविंग दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी टू, आगे किसी और फेमस पर्सनैलिटी को कहते थे कि नाउ आई एम हैंडिंग ओवर दिस ड्यूटी टू यू, अब आप अपने साथ लोगों को मिलाओ। वो सारा कुछ क्या है? अब इसका मतलब ये नहीं कि ओनली प्राइम मिनिस्टर इज गोइंग टू क्लीन एवरीथिंग या कोई और रिप्यूटेड पर्सनैलिटीज आर गोइंग टू क्लीन द सिटी, वो नहीं है। दे आर जस्ट मोटिवेशनल आइडियाज कि भी हाँ सारे लोग अपने आसपास ध्यान रखें, सफाई रखें, क्लीनिंग रखें, क्लीनलीनेस का ध्यान रखें। तो उस एंगल से अगर देखा जाए तो सैनिटेशनल फैसिलिटीज बेस्ट इन चाइना, सबसे ज्यादा जो वहाँ पर है चाइना में, फॉलोड बाय पाकिस्तान एंड लास्ट वन इज इंडिया। कैन यू टेल द रीजन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान? क्या पॉसिबल रीजन हो सकता है? पाकिस्तान इज परफॉर्मेंस इज वर्स्ट इन मेनी ऑफ द इंडिकेटर्स, पर फिर भी साफ सफाई के मामले में हमसे आगे है। उसका एक जो प्रोमिनेंट रीजन विच कैन बी पॉसिबल, इंडिया में ह्यूज साइज ऑफ पॉपुलेशन इज देयर, मेनी पीपल आर बिलो पॉवर्टी लाइन, मेनी पीपल आर इवन स्टिल बेगर्स, मतलब है ही नहीं कुछ तो, है ना। तो वो एक ये भी एक रीजन है कि इतनी ह्यूज पॉपुलेशन है, एरिया हमारा लिमिटेड है, कीपिंग इन ऑल्दो तो एरिया तो बड़ा है बट कीपिंग इन व्यू द साइज ऑफ पॉपुलेशन, एरिया हमारा कम होता जा रहा है, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इज गेटिंग इंक्रीज्ड डे बाय डे, ठीक है। तो पाकिस्तान में अभी उस तरह की हालत नहीं है, जितना एरिया है उसके हिसाब से उनकी पॉपुलेशन कम ही है, ठीक। आप सोचो कल पता नहीं मैंने आपको बताया 20,000 के आसपास है पाकिस्तान की पॉपुलेशन, 21 करोड़ नॉट थाउजेंड, ठीक है। तो यूपी की पॉपुलेशन 22 करोड़ के आसपास है। आप अपने मन में आप सोच के देखो अपना मैप इंडिया का, यूपी उत्तर प्रदेश एक स्टेट, उसमें 22 करोड़ के आसपास लोग रहते हैं, और उसके कंपैरेटिवली पाकिस्तान तो काफी बड़ा है एरिया वाइज, वहां पर 21 करोड़ लोग रहते हैं। तो इसका मतलब कंजस्टेड है, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन है यहाँ पर ज्यादा, तो ये भी एक वन ऑफ द रीजंस है इतनी सैनिटेशन ना होने का, ठीक है। देन नेक्स्ट इज, एक तो ये रीजन है, दूसरा हैबिट्स ऑफ द पीपल, दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन, लोग ही नहीं साफ रखना चाहते, तो ये भी एक रीजन है। देन नेक्स्ट इज पॉपुलेशन विद सस्टेनेबल एक्सेस टू इम्प्रूव्ड वाटर सोर्स परसेंटेज में। इम्प्रूव्ड वाटर सोर्स, इम्प्रूव्ड वाटर सोर्स का मतलब है, आपने कई सारे वीडियोस देखे होंगे वाटर स्केर्सिटी के ऊपर, प्रॉब्लम अब 10th तक आपने पढ़ा भी हुआ है, मेनी कॉजेज आर देयर। तो इम्प्रूव्ड का मतलब है दैट वाटर विच कैन बी, विच इज सेफ फॉर ड्रिंकिंग पर्पज, जिसको हम बोलते हैं सेफ ड्रिंकिंग वाटर। एक आपने पढ़ा हुआ है राइट टू वाटर, सबको पानी मिलना चाहिए, एक बेसिक लाइफ का राइट है। तो वो पीने लायक पानी जो है, पानी तो गंदा भी बहुत आता है, ये नोएडा और जो एनसीआर नेशनल कैपिटल रीजन है वहाँ पे वो गंदा पानी आता है, पीने लायक नहीं है। मतलब साफ सफाई तो ठीक है, येलो से कलर का, ब्राउन से कलर का, पीने लायक पानी नहीं है। तो यहाँ पर इम्प्रूव्ड वाटर का मीनिंग है पीने लायक पानी, जिसको हम कंज्यूम कर सकते हैं, पी सकते हैं, कुकिंग में यूज कर सकते हैं, वो वाला पानी। तो परसेंटेज क्या है इसकी वाटर की? हाईएस्ट इन चाइना, मतलब 96% उनको पानी मिल रहा है पीने लायक, फॉलोड बाय इंडिया एंड देन पाकिस्तान। मतलब ये ठीक है, ऑल द 3 कंट्रीज आर मोर देन 90%, ठीक है, दे आर वर्किंग हार्ड इन दिस रिगार्ड, ठीक है। एक आपकी क्लास को तो नहीं दिखाया था 10th में, लास्ट टू लास्ट ईयर ये वाटर स्केर्सिटी के ऊपर एक था, थोड़ा सा एक्टिविटी थी, तो उसमें दिखाया कि इंडिया, भूटान एंड नेपाल का कंपैरेटिव एनालिसिस था, ये तीनों कंट्रीज में व्हाट टाइप ऑफ सिचुएशन इज देयर। यू वोंट बिलीव, वन फील्स वेरी सैड एंड बैड ऑल्सो कि एक ह्यूमन बीइंग होके हमें
किस तरह की सिचुएशन में रहना पड़ सकता है, मतलब वर्स देन एनिमल्स एक तरह से कह सकते हैं। पानी नहीं है, महाराष्ट्र में पता नहीं कौन सी जगह थी, तो जो वेल्स हैं वहां पर कितने पता नहीं 40 फीट नीचे जाके वो पानी निकालना पड़ता है, नहीं तो कुएं में वेल में तो पानी बकेट से निकाल देते हैं, वहां पर पानी ही नहीं है, और वो नीचे जाके वो छोटी जैसे कटोरी होती है उससे वो अपनी बाल्टी में पानी भरते हैं, और वो भी गंदा पानी, पानी है ही नहीं। तो मतलब पीपल आर कंपेल्ड, तो नहीं है तो अब पानी के बिना तो नहीं जिया जा सकता, जैसा भी है वो पीते हैं, उसको यूज करते हैं, बीच में मक्खी मच्छर है सब कुछ है, मतलब वो कंज्यूम कर रहे हैं। नेपाल में एक जगह दिखाया गार्बेज है पानी के अंदर, पानी है ही नहीं वहां पे, और वो उसी में से पानी निकाल के यूज कर रहे हैं। तो आप सोच के देखो कि ऐसी सिचुएशन एक ह्यूमन बीइंग और फिर एक एनिमल में क्या फर्क रह गया। अगर जानवर की तरह ही हमारा जीवन चल रहा है, हमारे पास ऐसी फैसिलिटीज नहीं है, और हम लोग क्या करते हैं इन गुड कंडीशंस, हमें लगता है कि खुला पानी यूज करो, जो मर्जी पाइप लगा के व्हीकल दो, पानी पाइप लगा के ये कर लो वो कर लो, हम लोग उसको बड़ी बेदर्दी से इस्तेमाल करते हैं, उसकी सेविंग नहीं करते हैं, और हमें लगता है कि कोई बात नहीं, हम तो बिल दे देंगे, पैसे दे देंगे, उसका नहीं है। जब पानी होगा ही नहीं तो हमारे पैसे भी कुछ नहीं कर सकते एट दैट टाइम। जब चीज़ की अवेलेबिलिटी नहीं होगी वर्ल्ड में, तो पैसा उस टाइम पे कुछ कर नहीं सकता है, ठीक है। तो वाटर जो है दैट इज ए स्केर्स रिसोर्स, कहने के लिए रीन्यूएबल रिसोर्स है, बट रीन्यूएबल होने के बाद में पीने लायक कितना है वो एक प्रॉब्लमेटिक इशू है, ठीक। चलो एनी हाउ, नेक्स्ट इज परसेंटेज ऑफ अंडर नरिश्ड चिल्ड्रन। अंडर नरिश्ड का मतलब दोज हु आर नॉट गेटिंग गुड फूड। जितना एक बच्चे को ग्रोइंग एज में, हम बोलते हैं ना टीन्स 17, 18, 20 ईयर्स तक एक ग्रोइंग एज होती है, तो उस दौरान हमें एक बढ़िया खाना मिलना चाहिए कि हमारी ग्रोथ पूरी हो सके, किसी न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी ना हो बॉडी के अंदर, क्योंकि अगर अर्ली एज में डेफिशिएंसी हो जाती है तो कोई ना कोई डिसीज हो जाती है, फिर सारी उम्र वो डिसीज ही नहीं पीछा छोड़ती, ठीक। तो वो अंडर नरिश्ड बच्चों का नंबर कितना है परसेंटेज में? सबसे कम है चाइना में, उससे कम है इंडिया में, और सबसे ज्यादा नंबर है वैसे बच्चों का पाकिस्तान में। तो इंडिया और चाइना का भी डिफरेंस, अभी लार्ज डिफरेंसेस थे, यहाँ पर 9 है दिया हुआ, इट इज गिवन इन द बुक, 39 इन इंडिया। इसका मतलब अभी भी मेजर पार्ट ऑफ अवर चिल्ड्रन population, younger population, they are not getting good balanced food which they require for their growth, ठीक। तो आपको यहाँ पर एक ब्रॉड सा आइडिया होना चाहिए। अच्छा, मैं अब क्वेश्चन की फॉर्म में पूछती हूँ, आप बताएंगे मुझे। हायर द मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, अब आप बताइए बेटर और वर्स फॉर द कंट्री। अब आपको याद होना चाहिए ना, हायर बोला मैंने तो आप कहेंगे इट शुड बी लेस या वर्स फॉर द कंट्री, ठीक। अच्छा, लोअर द इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, बेटर फॉर द कंट्री या गुड फॉर, वो आपकी मर्जी है। दो कंट्रीज की बात करें तो बेटर कह देंगे, अदरवाइज गुड फॉर द कंट्री, ओके। हायर पर कैपिटा जीडीपी, good for the country. More availability of pure or safe drinking water, good for the country, okay. Higher the number of below poverty line people, bad for the country, ठीक है। आई होप नाउ इट इज क्लियर कि कौन सी चीज ज्यादा है तो ठीक है, नहीं तो गलत है, ठीक। अच्छा, बस दिस वाज ऑल अबाउट दिस टेबल। आपको ये टेबल याद नहीं करना, एक ब्रॉड सा मेन से आप कर ले, अदरवाइज पेपर में इन दिस फॉर्म क्वेश्चन डज नॉट कम कि गिव दिस टेबल, ऐसा नहीं आता। आपको ऑलरेडी टेबल विल बी गिवन इन द पेपर एंड यू विल बी आस्क्ड टू एनालाइज, कि उसको कंपेयर करो या बट आर यू अंडरस्टैंडिंग विद द हेल्प ऑफ दैट गिवन डाटा, तो उसका फिर आपने एनालाइज करना है, जैसे अभी मैंने एक्सप्लेन किया ऐसे। नाउ प्लीज कम टू नेक्स्ट पेज। लिबर्टी इंडिकेटर्स, वेरी इंटरेस्टिंग। लिबर्टी इंडिकेटर्स, इंडिकेटर का मीनिंग होता है वो चीज जो हमें किसी के बारे में बताती है। जैसे हम व्हीकल चला रहे हैं तो हम इंडिकेटर करते हैं भी हमने इस तरफ जाना है, राइट साइड को जाना है कि लेफ्ट को जाना है। इंडिकेट मतलब इशारा करना, एक जेस्चर देना, ठीक। तो अब यहाँ पर लिबर्टी इंडिकेटर का मतलब है कि इफ वी कंपेयर ऑल द 3 कंट्रीज, पाकिस्तान, इंडिया एंड चाइना, तो we have to pay attention not only to these statistical data in the form of demographic indicators या GDP growth indicators या HDI indicators, along with them we need to pay attention to liberty indicators also। तो अब ये सवाल है कि ये है क्या, तो इसका मतलब है फ्रीडम। लिबर्टी का मतलब होता है फ्रीडम, आज़ादी किसी को होना। तो अब आप फ्रीडम के बारे में अगर आप सोचो तो जितना आपने पढ़ा सुना है टीवी पे या यूट्यूब पे या वैसे ही सोशल मीडिया में, in which country there is maximum freedom of speech and expression if you compare these 3 countries?
किस कंट्री में मैक्सिमम फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है? इंडिया में है। यहाँ पर कोई भी जिसका जो दिल करता है वो बोल देता है, जिसका जो दिल करता है वो कह देता है, चाहे वो रिटन फॉर्म में हो, चाहे बोल के हो, चाहे कोई मूवी बना के कह देते हैं, एनी मोड ऑफ एक्सप्रेशन किसी भी तरह से हो सकता है. That means maximum freedom is there in India. Can you tell the reason behind this freedom? Because here it is democracy, and in our constitution when democratic system was adopted तो ये हमारे fundamental rights में भी दिया हुआ है, freedom of expression, ये सारा हमारे पास है. तो being a democratic setup we all are having freedom, but still we see many people are making misuse of this freedom also. बहुत सारे लोग हैं, those who don't मतलब otherwise different opinions can be there, but personally I feel those people who don't love their country वो अपने country के against भी बोल देते हैं. इंडिया में रह के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो चाइना की तारीफ करते हैं. उस तरीके से चाइना ने ये पीछे हुआ था गलवान वैली वाला इंसिडेंट जब हुआ था शुरू में, तो बहुत सारे ऐसे एनालिस्ट टीवी पे आते थे जो चाइना की स्ट्रेटेजिकली उसको बहुत दिखाते थे, चाइना ये है वो है. भी आप एक शब्द अपने कंट्री के बारे में नहीं कह सकते. ठीक है, कहने का मतलब कि इतनी लिबर्टी है हमारे यहाँ कि पीपल आर फ्री टू से, दे आर फ्री टू एक्सप्रेस देयर व्यूज, बट द सेम थिंग इज नॉट इन चाइना एंड द सेम थिंग इज नॉट इन पाकिस्तान इवन. ठीक है, उसका कारण क्या है? चाइना में है डिक्टेटरशिप रूल ऑफ सिंगल पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना. वहां पर है कंप्लीट डिक्टेटरशिप ऑफ दैट पार्टी. नोबडी कैन स्पीक अगेंस्ट देयर सिस्टम, देयर दैट पार्टी, देयर आर्मी, देयर कंट्री, कोई नहीं बोल सकते. इवन अगेंस्ट देयर गवर्नमेंट नोबडी कैन स्पीक. और पाकिस्तान में कहने के लिए वहां पे डेमोक्रेटिक सेटअप है, बट अदरवाइज द मेन कंट्रोल इज इन द हैंड्स ऑफ देयर मिलिट्री. उनकी आर्मी के हाथ में एस्टेब्लिशमेंट, उसको एस्टेब्लिशमेंट कहते हैं. वो एस्टेब्लिशमेंट किसकी है? वहाँ की आर्मी की है. एंड देयर प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, दे आर जस्ट लाइक पपेट्स. जैसे जैसे आर्मी डायरेक्ट करती है वो बेचारे हाँ जी वैसे ही कहना पड़ता है उनको. ठीक है, इसका मतलब हो गया कि जो ये लिबर्टी है, फ्रीडम है, तो चाइना में ऐसा कुछ नहीं है. तो वहाँ पर इवन टिकटॉक आपका फेवरेट था, है ना? तो नहीं, एक्सेप्शनली नहीं हो सकता, बट मेजोरिटी यंगस्टर्स का टिकटॉक बड़ा फेमस था उनमें. तो जब बैन हुआ तो बच्चे आपकी एज के या आपसे छोटे टिकटॉक बंद कर दिया. ये मोदी ने पता नहीं क्या कर दिया, है ना, उसके अपने ही पीएम के विरुद्ध हो गए. तो आपको हैरानी होगी कि टिकटॉक जो चाइना का काम था 2017 के 17 में उन्होंने स्टार्ट किया था. अपने कंट्री में टिकटॉक वाज नॉट अलाउड, चाइना में टिकटॉक अलाउड नहीं था. दैट वाज फॉर आउटसाइड चाइना. इवन अमेरिका में, इंडिया में, सभी जगह फेमस, सब जगह, सभी कॉन्टिनेंट्स. अमेरिका देखो कितना बड़ा कंट्री है, वहां भी टिकटॉक बहुत फेमस. बट चाइना के अपने कंट्री के अंदर दे डिड नॉट अलाउ देयर ओन पीपल टू मेक यूज ऑफ दैट प्लेटफॉर्म. सोशल मीडिया भी वहां पर सेंसर्ड है, इंटरनेट सेंसर्ड है. जो भी वहाँ पे ये वीडियो सोशल मीडिया के ऊपर जो भी आता है, फेसबुक है या ट्विटर है, ये सब कुछ वहाँ पर सेंसरशिप के अंदर. कोई मजाल है वहाँ पर कोई कुछ अगेंस्ट लिख के देखे? कुछ लिख नहीं सकते हैं. ठीक, तो ये मतलब है कि लिबर्टी इंडिकेटर्स, लिबर्टी होना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना किसी कंट्री की इनकम का ज्यादा होना. सोने के पिंजरे में एक बर्ड को रख दो तो कहो तुम तो गोल्ड के पिंजरे में हो, कि देखो तुम्हारा तो डायमंड भी लगे हुए हैं. ये उसको जब तक आजादी नहीं होगी वो उसको बढ़िया नहीं लगेगा, खाने को जो मर्जी दे दो. एक फ्रीडम की अपनी एक अहमियत है. ठीक है, तो ये इसका मतलब कि चाइना उस रिगार्ड से सबसे वर्स्ट कंट्री है. हो सकता है बाकी सब चीजों में आगे है, मनी वाइज आगे है, डेवलपमेंट वाइज भी आगे है, बट लिबर्टी के मामले में बाकी के दोनों कंट्रीज से पीछे है. इसका ये मतलब है. ठीक है जी. नेक्स्ट है अप्रेजल. अप्रेजल का मतलब है क्रिटिकल असेसमेंट. भाई पॉजिटिव भी क्या हुआ और नेगेटिव भी क्या हुआ, ये हमने देखना है. तो इंडिया के बारे में तो वी नो सब कुछ, अब इंडिया का ही पढ़ते आ रहे हैं. अब यहाँ पर हमने मेन स्ट्रेस करना है चाइना का. तो चाइना के जो टाइम पीरियड है दैट कैन बी डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स. एक है प्री रिफॉर्म 78 से पहले का उनका टाइम, एंड सेकेंड इज पोस्ट रिफॉर्म 78 के बाद से लेके अब तक का टाइम. तो प्री रिफॉर्म में उन्होंने क्या क्या स्टार्ट किया, ये जस्ट रीड करना है आपने. इसमें उन्होंने क्या किया, GLF कैंपेन स्टार्ट की, कम्यून सिस्टम एग्रीकल्चर के मामले में स्टार्ट कर दी, कम्यून सिस्टम स्टार्ट किया. पेड मोर स्ट्रेस टू देयर दिस इंडस्ट्रियलाइजेशन, सेकेंडरी सेक्टर को ज़्यादा जोर दिया उन्होंने. तो ये सारा कुछ किया और उसका रिजल्ट ये हुआ कि एटलीस्ट थोड़ा बहुत उनका, क्योंकि प्लानिंग सिस्टम अडॉप्ट किया तो लोगों को एटलीस्ट खाने पीने का समस्या हल हो गई उनकी, सबको ठीक ठाक सा एक लेवल उनका बन गया.
जैसे एक होता है ना, एक बिल्डिंग खड़ी करने से पहले एक फाउंडेशन ही बनानी होती है, तो ऑल ऑफ ए सडन ग्राउंड के ऊपर इतनी 10 मंजिला बिल्डिंग नहीं आप खड़ी कर सकते, पहले उसकी फाउंडेशन रखनी पड़ेगी। तो उनका जो प्री रिफॉर्म का टाइम था, जो कुछ भी उनकी पॉलिसीज थी, चाहे पॉपुलर हुई या नहीं हुई, चाहे लोगों को पसंद आई या नहीं आई, बट ऑन ए वाइडर स्केल, बड़े लेवल के ऊपर, दोज पॉलिसीज दे गेव देयर कंट्रीब्यूशन टू सेट ए स्टेज, जिसको बोल सकते हैं। तो वो सारा कुछ हुआ, और आफ्टर 78 फिर उन्होंने सोच समझ के अपने रिफॉर्म्स किए। नोबडी आस्क्ड देम टू स्टार्ट द रिफॉर्म। उनके ऊपर कोई वर्ल्ड बैंक की या IMF का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं थी कि भी आप ऐसे करो, आपके लिए जरूरी है, ऐसा कुछ नहीं। जैसे डॉक्टर कहते नहीं आप खाओ ये दवाई, आप खाओ, ऐसा कुछ नहीं। अपनी मर्जी से कोई हेल्थ के लिए खाना शुरू करे कुछ न्यूट्रिएंट्स, वो अलग बात है, पर कोई बंधन नहीं है, कोई कंपल्शन नहीं है। तो फिर चाइना ने उसके बाद दे पेड मोर अटेंशन टू देयर इंफ्रास्ट्रक्चर, दे पेड लॉट ऑफ अटेंशन टू दिस फॉरेन कैपिटल, बहुत एफर्ट किए उन्होंने। दे पेड अटेंशन टू देयर एक्सपेंशन ऑफ देयर एक्सपोर्ट्स, कि ज़्यादा बनाएं, दुनिया भर में अपने सामान को सेट कर दे, मतलब लोगों को उसकी आदत डाल दे। दिवाली पे अपने यहाँ लक्ष्मी और गणेश जी भी चाइना से ही बन के आते थे, मतलब इतनी ज़्यादा इस तरह से वो छा गए सभी कंट्रीज़ के ऊपर। इसका मतलब उन्होंने काम किया, तो ये सब कुछ किया है, ठीक है, चाहे जो भी है, बट दे डिड देयर वर्क। तो ये सारा कुछ उनका हेल्प हुआ उनको पोस्ट रिफॉर्म के बाद के पीरियड में, उन्होंने अपनी एक्सपेंशन की है टू ए ग्रेट एक्सटेंट, एंड नाउ दे आर गिविंग चैलेंज टू द सुपर पावर ऑफ द वर्ल्ड, अमेरिका। उसके सामने भी वो थ्रेट बन के खड़े हुए हैं, ठीक है जी। उसके बाद पाकिस्तान का है, तो पाकिस्तान के लिए तो हम सारे ज़्यादा जानते ही हैं, चाइना से भी ज़्यादा। तो पाकिस्तान में हमेशा से एक ही स्ट्रेटेजी रही है, किल इंडिया एंड किल इंडिया। जैसे भी हो, आप चाहे भूखे मर जाएं, पर इंडिया को नुकसान पहुंचाना है। उनकी बस एक ही सोलो मोटिव, जिसको सोलो सॉन्ग कॉम्पिटिशन होता है, तो उनकी एक सोलो मोटिव ये पॉलिसी रही है कि आप चाहे बर्बाद हो जाओ, पर इंडिया को ज़रूर बर्बाद करना है। तो उस पॉलिसी के चक्कर में वो सारा अपना, उनका जो मेन अटेंशन रही है, वो सारी टेररिस्ट एक्टिविटीज़ के ऊपर ज़्यादा है, मिलिट्री के ऊपर, वेपन्स खरीद लो, हथियार खरीद लो, जबकि उनको ज़रूरत नहीं है। बट दे इंस्टेड ऑफ स्पेंडिंग मनी फॉर देयर डेवलपमेंट ऑफ देयर कंट्री एंड देयर पीपल, दे आर स्पेंडिंग मनी ऑन दिस वेपन्स, आर्म्स, आर्मरी, इन सब चीज़ों के ऊपर उनका ज़्यादा ध्यान रहा है। इस तरह की एक्टिविटीज़ में रहा है। और फिर इनकम का कोई सोर्स नहीं, फॉरेन कंट्रीज़ के ऊपर ही, खास करके अमेरिका के ऊपर ही डिपेंडेंस रही फॉरेन करेंसी के लिए। तो बस वो इस तरह का काम है। एंड प्रेजेंटली यू विल बी हैप्पी टू नो कि जो पाकिस्तान है, एक ऑर्गेनाइजेशन है FATF, हिंदी में उसको पंजाबी में फैटफ आम बोलचाल में हम लोग बोल देते हैं। फैटफ मतलब FATF, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, एक इंटरनेशनल एक इंस्टीट्यूशन है, जैसे IMF है तो ऐसे ही। तो ये इसका काम क्या है, मनी लॉन्ड्रिंग के ऊपर कंट्रोल करना, इलीगल मनी जो जनरेट करते हैं उस तरह की एक्टिविटीज के ऊपर, प्लस जो कंट्रीज टेररिस्ट एक्टिविटीज को फंडिंग करते हैं। अब पाकिस्तान से बड़ा तो दुनिया में कोई कंट्री नहीं जो टेररिस्ट एक्टिविटीज को फंड करता है, पैसा देता है, तो इस तरह की एक्टिविटीज के लिए। तो अब ये उसकी एक ग्रे लिस्ट होती है, एक ब्लैक लिस्ट। तो पाकिस्तान इज इन ग्रे लिस्ट। उनको अभी अपने आप को सुधारो, नहीं तो यू विल बी केप्ट इन ब्लैक लिस्ट। तो ब्लैक लिस्ट का मतलब है कि फिर अदर फॉरेन कंट्रीज, दे विल नॉट बी इन ए पोजीशन, या दे विल नॉट लाइक टू हैव इकोनॉमिक रिलेशंस विद दैट कंट्री। ना तो कोई खास एक्सपोर्ट इंपोर्ट करेंगे, ना ही उसके साथ कोई ट्रांजेक्शन्स करेंगे, लेना देना, अपने रिलेशन तोड़ लेंगे एक तरह से। कोई भी ऐसे कंट्री में पैसा नहीं लगाना चाहता जहाँ पे इंस्टेबिलिटी हो, टेररिस्ट एक्टिविज्म ज़्यादा हो। नो कंट्री वांट्स। इन्वेस्टमेंट वही होती है जहाँ एक सूदिंग सा, एक पीसफुल माहौल हो, डेवलपमेंट का माहौल हो, वहीं पर कोई इन्वेस्ट करना चाहेगा। तो पाकिस्तान इज इन ए डेंजर जोन कि भी या तो सुधर जाओ, नहीं तो फिर आपको ब्लैक लिस्ट में। पैसा है नहीं, गरीबी है वहाँ पे, पॉवर्टी है, इन्फ्लेशन है, मतलब इंडिया को उसको मारने की ज़रूरत नहीं, वो अपने आप ही मर रहा है। इंडिया को भी कोई खास एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं है ऐसी सिचुएशन में। तो दे दैट मीन्स कि 70 ईयर्स में उन्होंने कोई अटेंशन नहीं किया अपनी डेवलपमेंट की ओर, बस अपनी डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज़ में उनका ध्यान रहा। ठीक है जी, दैट वाज ऑल अबाउट दिस चाइना एंड पाकिस्तान। इंडिया का तो हम सारे देख ही रहे हैं कि ट्राइंग टू मेक लॉट ऑफ प्रोग्रेस। आए दिन हमारी गवर्नमेंट, वेदर स्टेट गवर्नमेंट्स है, वेदर सेंट्रल गवर्नमेंट है, एवरी गवर्नमेंट इज ट्राइंग देयर बेस्ट टू इम्प्रूव द लेवल ऑफ डेवलपमेंट। ओपोजिशन तो होती रहती है, वो तो है ही है, बट एक डेमोक्रेटिक सेटअप में जैसा भी है, एवरी गवर्नमेंट इज ट्राइंग इट्स बेस्ट टू इम्प्रूव द स्टेटस ऑफ द इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ द पीपल, या अदरवाइज सोशल स्टेटस ऑफ द पीपल। एवरी गवर्नमेंट इज डूइंग, किसी भी पार्टी के उससे फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है जी, दिस वाज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। तो यहाँ पे एज आई टोल्ड अर्लियर, आपको जो डाटा है, मेन
बिल्कुल मेन सा जो आप कर सको तो दैट यू शुड डू। एक आपको आइडिया रहेगा कि कौन सा कंट्री आगे है कौन सा पीछे है। फिर ये अपने GLF प्रोग्राम, फिर चाइना की प्रोग्रेस कि कौन, जैसे पूछा जाए मान लो जस्ट फॉर एग्जांपल कि भाई चाइना में क्या किया गया, कितनी डेवलपमेंट हो गई, तो फिर आप ओवरऑल व्यू के हिसाब से आप लिखोगे कि दे पेड मोर अटेंशन टू देयर इंफ्रास्ट्रक्चर, दे पेड अटेंशन टू दिस फॉरेन डेवलपमेंट, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, कंट्रोल ओवर पॉपुलेशन दे ट्राइड, मतलब उसके प्लस पॉइंट्स आप इस तरह से। ठीक है जी, विद दिस चैप्टर कम्स टू एन एंड। टुमारो वी विल डू प्रोडक्ट मेथड। तो आप थोड़ा सा प्रोडक्ट मेथड की उसको देख के आना है ताकि हम काम कर सकें। अनीता मैम, नाउ यू कैन एंड द मीटिंग। Okay, ma'am. Okay, ma'am. Thank you. थैंक यू मैम।